रायगड़ा और कोरापुट जिलार कांग्रेस दलर सदस्य माने राहुल गांधी रायगड़ा गस्त को नहीं चलचंचल होई उठिले। मे मास 3 तारिख दिन राहुल गांधी रायगड़ा गस्तरे आसी जेस्को पड़ियारे आयोजन करा जायतिबा विशाल शोभायात्रा रे जोगदे भाषण देबे। ए कार्यक्रम निमंते होटेल तेजस्वी रे एक सांबादिक सम्मेलन आयोजन करा जायतिला। उक्त सांबादिक सम्मेलन रे तेलंगाना उपमुख्यमंत्री मल्ला भाटी विक्रमादित्य, कोरापुट लोकसभा संसद प्रार्थी सप्तगिरी शंकर उल्लाका, रायगड़ा विधानसभा प्रार्थी अपला स्वामी कड्राका अन्य प्रमुख व्यक्ति माने सांबादिक सम्मेलन मंच रे उपस्थित रहिथिले। तेलंगाना उपमुख्यमंत्री तेलंगाना रे महिला मानंकु और चाषी को सेठरे बासिंदा मानंकु रिहाती दर रे सिलिंडर देउथिबा उल्लेख करुथिले। रायगड़ा जिला कांग्रेस राहुल गांधी रायगड़ा गस्त को ने उत्साहित होइथिबा देखा देछि। नवीन पटनायक जी, and also the country is being ruled by Narendra Modi ji. And today, if you see the election, there are two issues are taking place seriously. One issue is the wealth and resources of this country to be with the country and to be with the people of this country. For that, our beloved leader Sri Rahul Gandhi is taking the stand. The other side, the wealth of this country and the resources of this country to be with a few crony capitalist friends of Narendra Modi ji, like Adani ji and Ambani ji. Congress party feels it's our bounded responsibility as a party which has brought the independence to this country and as a party which has given a strong footing for the democracy by giving a wonderful constitution. Under the leadership of Sri Rahul Gandhi ji, by way of taking the Padayatra also from Kanyakumari to Kashmir, with a slogan of the wealth and resources have to be protected and to be given to the country and to the citizens of this country. But unfortunately, the Prime Minister and the Chief Minister of the state, both of them are handing low instead of keeping the resources and wealth to the people of this country and the state, are handing over to the crony capitalists. Both of them are with an understanding only they are doing. That's the reason even Odisha also, you all know that there is a serious movement against Vedanta, a mining company, big mining corporate company, where bauxite mining has been given to Vedanta, where the entire primitive tribe of that particular area, Dongria Konda, who always do the puja to the hill and the culture, part of their culture. At that critical juncture also, a leader like Rahul ji has come here and took the stand that he'll be the Sipai of the Dongria Konda primitive tribe, saying that he will protect the hill and see to that Vedanta kind of corporate sectors will not enter into the state of Odisha, thereby exploiting the resources of the state. And other point, second point, communal harmony and secular belief. And
fully ruling this country with the spirit of the Indian Constitution. This is one side by heading Rahul Gandhi. The other side, unfortunately, the Prime Minister like Narendra Modi ji, bringing a division between the society of this country on the name of religion and polluting the harmonious congenial atmosphere of this country. These two are seriously affecting the image of this country, and I request the people of Odisha to think seriously about these two things and please take the stand for the leader who is taking the stand for the people of this country. का स्वागत है। मैं ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना सीनियर कांग्रेस लीडर कहना चाहता हूं कि वो उड़ीसा में रायगढ़ में आज शिव लाए और आज वो अगले 2 दिन तक रायगढ़ में लोगों के साथ मिलेंगे। और मैं एक बार सर फिर आपने आज मीडिया को यहाँ एड्रेस किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत विस्तार से ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने आपको राहुल गांधी जी के प्रोग्राम के बारे में बताया और ये भी बताया कि राहुल गांधी जी किन गारंटीज की कल यहाँ घोषणा करेंगे, चाहे वो केंद्र सरकार की जब हम आएंगे तो न्याय पत्र जो घोषणा की है या उड़ीसा में अगर सरकार आएगी तो यहाँ पे क्या गारंटीज देंगी, वो उन्होंने विस्तार से बताया। और ये भी बताया कि ये गारंटीज नरेंद्र मोदी जी की झूठे वादों की तरह गारंटीज नहीं है। 15 गारंटीज है जो तेलंगाना में 3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इम्प्लीमेंट भी कर दी है। उसी तरह जिस तरह तेलंगाना में इम्प्लीमेंट इनकी सरकार ने की है, उसी तरह उड़ीसा में भी सरकार बनने पे 3 महीने के अंदर सारी गारंटीज जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। और अभी बहुत बड़ी चुनौती उड़ीसा के और खास तौर पे केबीके रीजन के सामने ये है, बल्कि पूरे देश के सामने ये है कि अगर भाजपा की सरकार दोबारा आती है केंद्र में तो ये निश्चित है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे और रिजर्वेशन को भी खत्म करेंगे। ये बहुत बड़ी देश के सामने जो 2 चुनौती है। इसलिए मेरा अनुरोध है हमारा रायगढ़ के कोरापुट और उड़ीसा के लोगों से कि अभी सोच समझ के जो है भाजपा को और बीजेडी को बाहर का रास्ता दिखाना है, क्योंकि कल आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं। तो मैं उसका समय बता देता हूँ। 12 बजे के करीब आदरणीय राहुल गांधी जी रायगढ़ में उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और करीब 12:10 के आसपास से पब्लिक मीटिंग शुरू होगी और 1:30 बजे तक करीब 1 घंटे सवा घंटे जो है ये मीटिंग चलेगी। तो हमारा रायगढ़ की पब्लिक से ये अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस मीटिंग में पहुंचकर जो है वहाँ पहुंचकर इस विशाल रैली को जो है कामयाब बनाएं और आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ इस इंटरेक्शन में जो है वो भाग लें। मैंने कल भी आपको बताया था, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब साथियों के साथ साझा किया था कि आदरणीय राहुल गांधी जी का यहाँ के लोगों के साथ क्या रिश्ता है। उनके परिवार का रिश्ता हमेशा रहा है। इंदिरा गांधी जी का यहाँ लोगों से बहुत करीबी रिश्ता रहा है और यहाँ के लोग आज भी इंदिरा जी को इंदिरा अम्मा कह के पुकारते हैं। राजीव जी ने भी वही रिश्ता निभाया और यहाँ हमेशा उनका आना जाना रहा और यहाँ लोगों की लड़ाई लड़ी और उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी ने निहमगरी की लड़ाई लड़ी। और 2013 में जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था आदिवासियों के लिए कि मैं आपका सिपाही हूँ और मैं हमेशा आपका सिपाही रहकर आपकी लड़ाई लड़ूंगा। तो कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं और ये पब्लिक मीटिंग जो है जेसो ग्राउंड जो जेस्को ग्राउंड जो GISER कॉलेज रायगढ़ के पास है, जेस्को ग्राउंड में ये पब्लिक मीटिंग होगी। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं इसी के साथ आपको धन्यवाद। रायगढ़ आशुतोष कुमार पट्टनायक रिपोर्ट संघर्ष टीवी।